design for society, what all falls there, what all will fall there, and what is UX UI, why they didn't opted, why they didn't want to emphasize too much on fashion for masters, right? And why they wanted to go for, so why, how you can opt the course for your own. So there will be things like that. So वो detail में discuss करेंगे, but we will refer the curriculum while doing this. ठीक है? So can I start with MFM मैम first? एक क्वेश्चन और मेरा मैम, Yeah, जैसे sir. वहाँ पे ऑफलाइन में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे, सीवी No, वगैरह? nothing. नथिंग You just have to go there. You have to carry your admit card. ओनली? And you have to dress up nicely. Like nicely mean in a way that it cannot be so much formal, but semi-formal is fine in whatever you're comfortable with. So that is there. And we will have a detailed class with Naveen sir on that too. But yeah. We don't have to take a resume, na? No, that is not required. Okay. That is not required. And you will get the detail whether it is online, offline, when your, when It's your offline, ma'am. admit card will be released. Okay. But 90%, I think it is offline because there's no constraint this time. But again, just to be assured, it has to be, you have to wait till admit card just to be 100% sure. Otherwise, Naveen sir is a better person to, Naveen sir and Krishna sir can help you with. So yeah, we'll start with MFM today. Is that fine? How many of you are for, last time it was online. Yeah. Yes, Khushi, last time it was online. This time, let's see, let's wait for the admit card before releasing any word. But yeah, hopefully it should be offline because that gives you actual experience, and there are a lot of network issues and nervousness. There are a lot of factors which might affect your thing, so it's better to. आप नर्वस थी मैम वहाँ पे? Sorry? आप नर्वस थी वहाँ पे उस समय इंटरव्यू के टाइम? Obviously, मतलब interview is something जो थोड़ा सा, it is very human in nature. Abhi to I'm very much comfortable talking to people, but at that time, obviously I was, and it is completely fine. They will ask you to relax, they will ask you to breathe, they will ask you for water, they will offer you water. So they will make you comfortable. टोटल मैम 3 ही लोग रहते हैं वहाँ पे ना, पैनलिस्ट? यार डिपेंड करता है, 2 or 3. मेरे टाइम पे 3 थे. उस टाइम पर एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो अगेन as I've said will understand your body language, will see how you're speaking, how you're talking, how whether it is true or not, whether it is ratified or not. अभी रट के आए हो या खुद से बोल रहे हो, बिकॉज उनका जो फॉलो अप क्वेश्चन होता है वो वैसा ही होता है, उनको समझ आ जाता है बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दिस सिंस वेरी लॉन्ग. But you should yourself should have that understanding, and please after all the classes go back to the prospectus, understand about the industry, because it's okay if you don't know about curriculum में ये वाले course में ये क्या था, but it should be very relevant that आप 2 साल बाद क्या करना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए, और इस कोर्स से आपको क्या क्या एलिमेंट्स लेने हैं अपने लिए. इट्स ओके अगर आपको यूएक्स यूआई, जैसे बहुत सारे लोगों का द आंसर दैट दे वांट टू बी यूएक्स यूआई डिजाइनर. इट इज फाइन अगर आपको नहीं पता कि डिजाइन फॉर सोसाइटी में क्या होता है, फैशन इवोल्यूशन में क्या पढ़ाते हैं. इट्स फाइन बिकॉज यू आर देयर फॉर योर बिट, बट आपको अपने बिट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. Yeah, Khushi, I'll answer all your questions. I know you have a big list of questions, but yeah, we'll try to answer. This is the very first interaction, and there are other people too. So I will start with MFM. Is that fine? Like, I'll just brief you about the industry first, and this is not only for MFM kids. It is I will make you understand that in an export house, right? What is the role of MF Tech student? What is the role of M design student if they ever have gone to, and maybe they might end up landing to export house. So MFM, M design and MF Tech. 3 courses are for fashion industry. It is not the curriculum. The things are not very similar to MBA. Why? Because the product life cycle is different. This is for everyone. I want everyone to please hear me. The product life cycle is different. You're going to FMCG. Right now I'm in FMCG, so I can relate to it. So FMCG ka product life cycle is different. Hindi mein kisi ko koi problem to nahi hai. I think everyone can understand Hindi. Please, is there someone who has issue to understand Hindi? Matlab, it will be English and Hindi both combined. Chalega sabko?
यस मैम, अमेजिंग, ठीक है। अमेजिंग। सो आप अभी एक्सपोर्ट हाउस के बारे में आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट हाउस में क्या क्या होता है, वहां पर कौन कौन से रोल्स होते हैं, जो कि एक निफ्ट एल्यूमिनाई वहां पर वो ऑप्ट कर सकता है, वो ऑप्ट कर सकता है, राइट। सो सबसे पहला है एक्सपोर्ट हाउस। एक्सपोर्ट हाउस एक ऐसा जगह है जहां पर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो एक फैशन गुड। Exports means, and you're doing the production not for Indian consumer. It might be for Indian consumer, but your product is going to other country. ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है दूसरी कंट्री में, आपको उसको शिप करना है या आपको उसको डिलीवर करना है। क्लियर? अब उसके लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? सबसे पहले आप एक मैन्युफैक्चरर को ढूंढोगे। मैन्युफैक्चरर को कौन ढूंढेगा? एक बंदा ढूंढेगा जिसको प्रोडक्शन करवाना है, जिसको कुछ सामान चाहिए, दे नीड सम सर्टेन गुड्स, राइट। सो वो एक बंदा होता है, उसको उसके पास एक्सपोर्ट हाउस में एक मर्चेंडाइजर नाम का एक प्रोफाइल होता है, ठीक है। मर्चेंडाइजर जो प्रोफाइल है, जिस बंदे का वो प्रोफाइल है, वो उस बंदे से कम्युनिकेट करे। मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगी, बट अभी अब मुझे बताना अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो मर्चेंडाइजर एक बंदा होगा जो कि एमएफएम का हो सकता है, जो उस बंदे से कनेक्ट करेगा जो कि ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, राइट। अब मर्चेंडाइजर ने ऑर्डर ले लिया, उसको उसने बैक एंड फोर्थ करा, उसने बोला भाई मेरा तो ये सैंपल है, मैं ऐसा सैंपल बना के दे सकता हूँ आपको। उस बंदे से रिक्वायरमेंट ली, राइट। उस बंदे का जो XYZ जो ब्रांड है जो ऑर्डर प्लेस कर रही है, उस बंदे का ने के पास कोई आइडिया भी हो सकता है। तो वो आइडिया एक एम डिजाइन का जो स्टूडेंट है वो उसको एक प्रोटोटाइप बनाकर देगा। यहां तक सब साथ में है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा? वो एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाकर देगा उसको कि ठीक है, आपका जो आइडिएशन था, आपका जो आइडिया था, उसके हिसाब से मेरी कंपनी में ऐसी ऐसे वेरिएंट्स या ऐसा एक प्रोडक्ट बन सकता है, करेक्ट। वो प्रोडक्ट जब बन गया तो उसके बाद वापस बायर के पास जाएगा। बायर उसको देखेगा, ठीक है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी, मेरे को ये चीज यहाँ चाहिए थी, मेरे को रफल चाहिए थे, मेरे को गैदर्स चाहिए थे, मेरे को सर्टेन फैब्रिक चाहिए था, सर्टेन फैब्रिक का सर्टेन शेड कलर चाहिए था, कलर में ये वेरिएशन इनके पास ये अवेल करा सकते हैं, इस तरह का प्रिंट। यू गेटिंग इट, राइट। ये जो डिटेलिंग होती है, ये फैशन के आपको कोर्सेज में पढ़ाई जाएगी, एमएफ टेक में और एमएफएम में स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ाई जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ फैब्रिक, किस फैब्रिक में कैसा डाई चढ़ता है, किस फैब्रिक में किस तरह की मशीन यूज होती है, किस फैब्रिक की क्या प्रॉपर्टी है, किस 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 दो तरह के फैब्रिक का ब्लेंड हो सकता है, यू नो, ये सारी चीजें आप इन कोर्सेज में पढ़ोगे, ठीक है। सो या उसने वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करवाए, एम डिजाइन का स्टूडेंट पढ़ता है तो वो बंदा वो एग्जीक्यूट करवाएगा। जब वो डिजाइन फाइनल हो जाएगा तो वो मर्चेंडाइजर के पास आ जाएगा। अब मर्चेंडाइजर क्या करेगा, आप मुझे साइज सेट दो, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल, कितने पीसेस चाहिए, किस तरह के चाहिए, साइज मेजरमेंट चार्ट क्या है आपका रेफरेंस, बिकॉज हर कंट्री का मेजरमेंट चार्ट डिफरेंट होता है, राइट। सो क्या है, ये छोटी छोटी डिटेल्स का कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद वो उसके बाद जब उस अप्रूव, उसके बाद सबसे बड़ी चीज आती है कॉस्टिंग। जो मैं बायर हूँ, बायर एक बंदे के पास तो डिपेंडेंट होगा नहीं, वो दो तीन ब्रांड्स के पास या दो तीन मैन्युफैक्चरर के पास जा सकता है कि भाई मेरे को ये प्रोड्यूस करो। तो जिसका कॉस्टिंग सेट होगा, जिसका मटेरियल सेट होगा, जिसका लीड टाइम मिनिमम होगा। अब लीड टाइम क्या वर्ड है? लीड टाइम मीन्स आपके आइडिया से डिलीवरी तक का जो टाइम है। कई जगह 45 होता है, कई जगह 60 होता है, कई जगह, मतलब इफ इट इज अ फास्ट फैशन ब्रांड, फास्ट फैशन ब्रांड सबको पता है क्या होता है, राइट। जहां पर फटाफट रिप्लेनिशमेंट होता है, फटाफट वहाँ के स्टाइल चेंज होते हैं, नए 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 SKUs आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं। सो फास्ट फैशन ब्रांड है, उसका लीड टाइम कम होगा। क्लासिक ब्रांड है, जैसे डेनिम है, बहुत सारी क्लासिक ब्रांड समझ लो, राइट, सिल्क साड़ी है, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, तो फिर उसका लाइफ लाइफ साइकिल बड़ा होगा, तो उसका लीड टाइम ज्यादा हो सकता है। तो लीड टाइम पे डिपेंड करते हुए कौन डिलीवर कर पा रहा है, ये सारी चीजें प्लानिंग होती है। जब ये सारी चीजें क्लोज हो जाती है, तब वो जो ऑर्डर है वो क्लोज होता है।
सो अब ये जो ऑर्डर क्लोज कर रहा है, ये जो सारा नेगोशिएशन है, जो कॉस्टिंग है, सोर्सिंग है, ये सारा एक एमएफएम का स्टूडेंट कर रहा है। इसमें जो सोर्सिंग डिपार्टमेंट है वो एक एमएफ टेक का स्टूडेंट भी हेड कर सकता है, बिकॉज जब आप एमएफ टेक में पढ़ रहे हो तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ फैब्रिक पढ़ रहे हो, आप डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी पढ़ रहे हो के बारे में पढ़ रहे हो, आप डिफरेंट क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ रहे हो। अगर मैंने ये विंट क्या बोलते हैं इसको Backstory. नहीं, हाँ, मतलब ये जैकेट जो है विंड शीटर, मैंने ये विंड शीटर, ठीक ये है। भी नहीं आता, ये विंड शीटर मैंने किसी ब्रांड से खरीदा है, सपोज है ना। अगर वो ब्रांडेड है तो मेरे को पता है इसका क्वालिटी अच्छा होगा, अगर ये लोकल मार्केट से पता है तो खरीदा है तो मुझे पता है इसका क्वालिटी क्या होगा। तो एवरी ब्रांड हैज देयर स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसको मेंटेन करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए तो ये चीज एक एमएफएम और एमएफ टेक वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। सिक्स सिग्मा रूल और क्वालिटी कैसे अश्योर करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, ब्लीडिंग कितने जो फैब्रिक होता है उसकी ब्लीडिंग होती है, राइट, कितना टाइम तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें। तो एमएफएम और एम डिजाइन, वो एम एफ टेक का स्टूडेंट यहाँ पर इन रोल्स के लिए फिट होता है। डिजाइनिंग अगेन इज समथिंग जो कि एक एम डिजाइन का स्टूडेंट फिट होता है, बट अगेन एमएफएम का स्टूडेंट भी इसको कई हद तक जस्टिफाई कर लेता है। एक्सपोर्ट वाली जो डिजाइनिंग होती है, बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ कॉपी पेस्ट थिंग, इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग बैक एंड इंस्पिरेशन ले रहे हो, थीम सब थीम बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सिंपल आपका कॉपी पेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है बायर की, और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन कराने, राइट। सो अब सोर्सिंग तक आ गए। सोर्सिंग हमारा एक एमएफ टेक का स्टूडेंट करेगा। व्हाई? बिकॉज दे डोंट नो टेक्निकलिटी ऑफ फैब्रिक. So if you're someone who want to have your own textile hub or something like that, then export house is the right place to get the experience, and then you can move further and open your own brand. So during your interview, if you're planning to say, I reside in Tirupur, I reside in Panipat, and I want to open my own company, or I want to join my father's business. Example, I'm just quoting an example. आप अगर ऐसी चीजें बताना चाह रहे तो आपको वो पूछेंगे, why MFM, why not MF Tech? These questions might come. Getting it? So just to be ready, ये मैं आपको स्टोरी पूरी बता रही हूँ, ठीक है। एंड ये हो गया। उसके बाद या यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चल रहा है स्टोरी सही? ठीक है। अभी हम इसको प्रोस्पेक्टस से भी रिलेट करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप लोग करके लाओगे, फिर हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अब ऑर्डर फाइनल हो गया। अब एमएफएम वाला स्टूडेंट ने भाई क्लोजिंग कर ली, मतलब मर्चेंडाइजर ने क्लोजिंग कर ली, कॉस्टिंग कर ली, सोर्सिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, सारा सामान इन स्टॉक हो गया। अब वो फ्लोर पे जाएगा और उसका बल्क प्रोडक्शन होगा। बल्क प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन मैनेजर नाम का बंदा देखता है, और वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो एमएफ टेक वाला होता है। उसको वो प्लान करना होता है कि किस टेक्निक, कौन सी मशीन यूज करनी है, कैसे क्वालिटी मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरह की फैब्रिक पे किस तरह का थ्रेड यूज करना है। ये सारी थोड़ी टेक्निकल डिसीजंस होते हैं जो एक बल्क मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर लेने होते हैं। तो वो सारी चीजों में जब आप एमएफ टेक पढ़ रहे हो तो आपको उन चीजों का अंडरस्टैंडिंग कराते हैं ड्यूरिंग कोर्स, तो वो हेल्प करता है आपको, ठीक है। देन उसके बाद आप क्वालिटी अश्योरेंस, अगेन क्वालिटी समथिंग विच इज वेरी मच रिलेटेड टू एमएफ टेक स्टूडेंट, सो वो आप करते हो। उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन एमएफएम का स्टूडेंट करेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जो होता है ना शिपिंग के लिए, ये सारी चीजें। देन या इतने ही रोल होते हैं, मतलब उसके बाद फिर ऑर्डर फाइनल हो जाता है, शिप हो जाता है, फिर आप ऐसे ग्रो करते हो। तो इन एक्सपोर्ट हाउस आप डिजाइनिंग की तरह जा सकते हो, डिजाइनर की तरह जा सकते हो। एम डिजाइन वालों के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं होता, बट यस, if you're going there you will be like that. You can also, if you have managerial skill, then you can be slowly gradually work as designer, head designer होते हैं एक्सपोर्ट हाउस में। वाई एक्सपोर्ट हाउस में ये चीज भी होती है कि आप कभी कोई अपैरल सोर्सिंग वीक या कुछ ऐसे इवेंट पे गया है, वहां पर जो एक्सपोर्ट हाउस वाले होते हैं ना, वो अपने डिजाइन शोकेस करते हैं कि हमारे पास ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है। तो उसके लिए एक डिजाइनर एक्सपोर्ट हाउस में जनरली होता है, राइट। सो वो हो गया। तो एक डिजाइनर हो सकता है इस तरह से
एक MFM वाला स्टूडेंट एक मर्चेंडाइजर की तरह हो सकता है। वो सबसे पहले जब ज्वाइन करेगा तो असिस्टेंट मर्च, अब हाँ, where do you see yourself after 5 years, right? If you think that this field is belonging to you, then you will answer that I want to, you cannot say that I want to see myself as general manager of an export house or something. It should be, you can see yourself as a merchandiser, your marketing manager for in an export house, right? This you can achieve within 5 years, but not more than that. And you cannot say that after 5 years I want to see myself as an assistant merchandiser. You can use the word merchandiser at least. So ये ऐसे question आप कर सकते हो, क्यों करना चाहते हो? Because I have this skill, I have my interest is to know what kind of fabric it is, what is the costing when I go out to explore market, and when I go for observation I see that how much costing would it be, how much margin this guy is getting on this relevant SKUs. अगर आपके अंदर ये सारी curiosities है तो आप इस फील्ड से कनेक्ट के रिलेट कर सकते हो। कनेक्ट कर रहे हो कि हम लोग क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं, कहानी नहीं है, हम इसको क्यों कर रहे हैं। आप यस मैम। हाँ, यस आप मैम। कुछ बोलो, कुछ क्वेश्चन है प्लीज, रिचा, शिप्रा। नहीं अभी तक नहीं। Yeah, Riddhi, we'll come to that. We'll come to that. We will be having regular classes now. So we want to take a little initial few classes. We want to take as a detailed discussion, because again, that will help you to make your own conscious call during your interview. So ये सारी चीजें आंसर करेंगे रिद्धि। How many panelists are there? What will panelists ask and all? वो सब सेकेंडरी है, बेस आपको पता चल जाएगा, then you will be able to answer. ठीक है, सो ये सारे रोल्स हैं एक एक्सपोर्ट हाउस में। देन देयर इज रिटेल इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। सो रिटेल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली देयर इज अ जो बायर है वो रिटेल इंडस्ट्री का ही पार्ट है। सो उनको एक OTB मिलता है, उनको एक बजट मिलता है। लाइक फॉर एग्जांपल, एनीवन टेल वन फेवरेट ब्रांड ऑफ योर्स, एनी ब्रांड। Zudio. Very nice. Zudio, वेस्ट साइड। Westside, Tommy, good. H&M, very nice. So yeah, so one of you are working, because you've said Zudio, so there are chances, Aparna, that you want to work in a brand like Zudio, which is, playing at a price point level, right? Yes, You ma'am. might see yourself, you're there as some category, in working in some category. And what is category? Men's, women's, kids, women's, maybe ethnic है, western है, right? ये सारे breakups होते हैं further categories के. So if you're working for one category will get one certain budget based on previous sale. There are mostly two seasons, spring, summer, autumn, winter season in fashion, like generally. I'm not sure. ठीक है, I'll continue and then I'll take all the questions. वो distract हो रही हूँ. It's okay. Please hold on. I will answer all your questions. ठीक है. अब रिटेल पे आ गए हम लोग। मैन्युफैक्चरिंग आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अगर डिटेल में डिस्कशन करना है हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। सो अब रिटेल में एक बंदा है, उसको एक बजट मिलता है। अब जैसे मैं यहाँ पर रोशनी का नाम लेती हूँ। रोशनी वुमेन कैटेगरी देखती है, अमरनाथ मेन कैटेगरी देखते हैं, कृति किड्स कैटेगरी देखते हैं, एग्जाम्पल। सो मैं हेड हूँ, मेरे पास एक सर्टेन